feature, sorry, embryological characteristic feature or palynological characteristic feature or any other such a type of characteristic feature. आप सभी सुन रहे हैं? Yes, Hello? sir. Yes. Yes, sir. So, anybody of you is known regarding phytochemistry? Hello? Phytochemistry, phyto means plant, that is chemistry of a plants. So as far as phytochemistry considered, phytochemistry means chemical composition of a plant, what they consist of. I think you might be known chemical composition of plant consists of primary, secondary and tertiary type of metabolites for different substances. Just a minute. Just a minute. I have some. खाली जी एक 10 मिनिटं अर्ध्या तासानं फोन करतो मी जरा क्लासमध्ये आहे. So I think all of you are known regarding the phytochemistry because plant shows presence of different phytochemical substances including proteins, flavonoids, betalains, etc. Hello? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइटल स्लाइड ही देख रहे हैं या दूसरी स्लाइड देख रहे हैं? First slide. टाइटल स्लाइड देख रहे हैं ना, मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी वाली? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So our today's topic is related to modern trends in taxonomy, and it includes several aspects, that is embryology, anatomy, palynology, are supposed to be many more other branches of a modern branches of a botanical science. But out of this, as a part of our syllabus, we are going to study cytotaxonomy, that is taxonomy related to cytology, then phytochemistry, and in the broad sense we are going to study the topics related to karyotype analysis, presence of proteins, flavonoids, betalains, etc. थोड़ी सी एक बात ध्यान में रखो कि modern trends in taxonomy is a wide aspect. It did not involve or includes only cytotaxonomy or phytochemistry. It also includes information from embryology, उसके बाद anatomy, palynology, and many more other branches of the science also. Last lecture में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, शायद 4 अंधे हाथी देखने को जाते हैं, isn't it? Yes, sir. हाँ, तो वैसे एक ही चीज के बारे में whenever you are going to look to that thing by different angle, then it becomes more important, then you come to know regarding many more things. So what normally we do, whatever we observe the characteristic feature or whatever we know, on basis of that we are going to conclude regarding that individual. सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोला कि सर आप आपके क्लास से एबीसी स्टूडेंट को देखते हैं वो बदमाश है. It is only because of thing that my observation is different and his observation is different or from different place. फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सिर्फ क्लासरूम में देखा है, मैंने बाहर आपको देखा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई माय ओपिनियन इज डिफरेंट. और जो दूसरा इंसान बोल रहा है कि सर वो बदमाश है, उसने आपको दूसरे कई जगह देखा है. सो जस्ट लाइक दैट व्हेनेवर a plant or individual or organism is observed by different angle, more and more information is collected, and this collected information is useful to classify that individual or that plant. So as far as modern trends in taxonomy considered, nowadays, in spite of remaining dependent on the gross morphology, you should depend, or peoples are now dependent on cytotaxonomy or phytochemistry or anatomy or embryology or palynology or other branches of knowledge from which maximum information is available regarding the regarding that individual plant. So now the things are clear or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. मॉडर्न Yes, क्यों sir. बोल रहे हैं? मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं? पुराने जमाने में सिर्फ मॉर्फोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया जाता था. Even now also, today also, we give, no doubt, we give importance to morphology. But along with the morphology, now
on the large scale, peoples of the world are giving importance to other aspects of knowledge or other branches of the knowledge. So with this introduction, I would like to directly start with the cytotaxonomy. Hello, अभी cytotaxonomy या karyotype की slide दिख रही है? Yes, sir. Okay, so as far as cytotaxonomy considered, it's simply nothing but taxonomy of the cell, or cyto means cytology or cell. So taxonomy of the cell. Now, as far as modern taxonomists consider, that are the cross morphological characters are not always sufficient to provide means of differentiation in determining genetically and evolutionary relationship between taxa. जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक थोड़ा सा मुझे आप बता सकते हैं अभी कितने स्टूडेंट ज्वाइन है? हेलो 48। अच्छा, नयन है? नयन सुन रहा है? नहीं है सर। अच्छा, नयन नहीं है, ओके। अपूर्वा है? यस सर। ओके, अपूर्वा समझ लो कि ऐसा समझ लो कि आपके क्लास के किसी लड़के को मैं कितना जानता हूं, जितना मैंने क्लासरूम में देखा है उतना ही जानता हूं, और उसलिए मेरे दिमाग में उसके बारे में जो भी आइडिया है दैट इज ओनली मोनोटोनस आइडिया, इजंट इट? यस सर। Yes, your parents may have different opinion regarding you. Your class fellows may have different opinion regarding you. So regarding you, if I want a detailed characteristic feature, then I should look to that person through different angle. And very similarly, in modern taxonomy, in spite of importance given to gross morphology, importance is given to anatomy, embryology, palynology, cytology, paleobotany, ecology, biochemistry, and many more other branches of the science. Now, as far as karyotype considered, what is karyotype? We can go in a next successive slide, but you just observe what is the view of different peoples in regarding modern trends in taxonomy. Dr. V. Puri has said that one of the most significant modern trend in plant taxonomy is toward a synthesis between the older method, मतलब पुराने मेथड जो है उसमें synthesis, outlook and more recent developments in our knowledge of a plants. मतलब पुराने और मॉडर्न जमाने में डिफरेंस क्या है? मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं so that it is clear to you. अभी आपने फिजिकली जब हमारा कॉलेज शुरू था तब आप लोग लेक्चर लेते थे, सही है? आप लोग लेक्चर अटेंड करते थे? Yes, sir. अच्छा, आप लोग जब लेक्चर अटेंड करते थे तब आप हमारे सामने आप लोग सभी एट ए टाइम रहते थे, तो क्या हम हमेशा पूछते थे क्या? टीचर पूछता था क्या आपको आवाज आ रहा है क्या, क्या मैं दिख रहा हूँ क्या? पूछता था? नहीं। लेकिन हम अभी आपको बार बार क्यों पूछ रहे हैं? Am I audible? Am I visible? Because I have always feared that whatever I am explaining or whatever I am teaching, whether it reaches up to you or not, isn't it? Yes sir. So just like that, modern taxonomists, in spite of remaining dependent on morphology, now they are dependent on other branches of the botanical knowledge. Now, in spite of Puri, Bele in 1949 has said that if a truly natural classification is to be attended, it must be based upon the, अगर ट्रूली नेचुरल क्लासिफिकेशन है तो किस पर चाहिए? द एनालिसिस एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड पार्ट्स. हार्मोनाइजेशन का मराठी में मतलब है एकत्रीकरण. सभी टिश्यूज, सभी ऑर्गन, सभी प्लांट पार्ट्स का के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके एविडेंसेस अवेलेबल चाहिए, उसका हार्मोनाइजेशन चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ट्रूली नेचुरल क्लासिफिकेशन. आ रहा है ध्यान में? Yes, sir. Okay. So now the first branch, that is cytology. As far as cytology considered, you are better known with the cytology because cytology is an important branch of modern science. It gives clear-cut idea regarding the cell and its structure and how now this cytology is used in relation to taxonomy.
applications of cytological data in elucidation of taxonomic problems, मतलब taxonomic problems solve करने के लिए cytological data का use करना. It is seen that various attributes, attributes का मतलब है characters, various attributes of chromosomes like, attribute का मतलब है character, कौन कौन से attribute या कौन कौन से character देखो, chromosome number, chromosome morphology, chromosome size, behavior of chromosome in crosses, and abbreviations in reproduction are all important. At this stage, all of you are known with the fact that in organism, in living organism, characteristic features are controlled by genes which are located on the chromosome. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So the thing is clear that genes are responsible to control the characteristic features of organism. And these genes are located on the chromosome. And that's why you should be known regarding number of chromosomes, morphology of the chromosome, size of the chromosome, behavior of the chromosome, and their cross behavior during the crosses, etc. Or how they are behaving during the meiosis. So these things are important. चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ. मैं आप लोगों में से किसी का भी अब्रप्टली नाम लेके बार बार पूछ रहा था, कभी कभी पूछा होगा मैंने, आप कहाँ से हो, आप हॉस्टल में रहते क्या, कुछ आइडिया आती थी आपको मैं क्यों पूछ रहा था? हेलो, No, मैंने sir. हर क्लास में बहुत बार पूछा है, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप हॉस्टल में रहते क्या, मैंने पूछा था ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने इसलिए पूछा था कि शायद हो सकता है अगर आप हॉस्टल में रहते तो यू हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर आप घर में रहते हैं तो योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर माइट बी डिफरेंट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, हेलो, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, आवाज आ रहा है किसी का, थोड़ा आवाज कम करो. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, आप अगर रूरल एरिया से है तो उसका मतलब है हो सकता है आपको इंटरनेट कवरेज नहीं होगा. So by considering these facts, I am always asking you regarding these different questions. So Bailey has considered that for truly natural classification, it must be based on analysis, harmonization of evidences from all organs, tissues as well as parts. So this is regarding the modern trends or modern trend by different workers. Now cytology in relation to taxonomy. Its application of cytological data in elucidation, ये तो हो गया है. Size, behavior, chromosome number, chromosome morphology, chromosome size, chromosome behavior in classes, cytotaxonomical approaches in classification, then significance of cytotaxonomy. तो हम देखते हैं पहला पार्ट. हमने पहले इसमें इसके अर्लियर स्लाइड में हमने सिर्फ पॉइंट्स देखे थे और अभी हम देखने जा रहे हैं. देखो ये पॉइंट्स है, क्रोमोसोम नंबर, मॉर्फोलॉजी, साइज, ये पॉइंट्स है. अभी हम देखने जा रहे हैं पहला पॉइंट, दैट इज क्रोमोसोम नंबर. आई थिंक यू आर बेस्ट नोन एंजियोस्पर्म आर स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट इन द एंजियोस्पर्म. व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग? हेलो, 46. 46. And you are better known out of these 46, 44 or 20, sorry, 44 or 22 pairs are autosomes and one pair is of a sex chromosome, and thus human being has 23 pairs of a chromosome. Now in case of a plant, the haploid number of chromosome in angiosperm ranges from n is equal to 12 in Haplopappus gracilis. N का मतलब है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 12, 12 in Haplopappus gracilis. Haplopappus gracilis is a member of family Asteraceae. थोड़ा सा देख लो, मैंने Haplopappus gracilis को इटैलिक में लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने ISBN या ISN जब पढ़े थे तब हमने देखा है कि whenever botanical name is typed it should be in italics, और अगर लिखते हैं तो it should be underlined. तो अराउंड n is equal to 132 in Poa littorea. पोएसी का मेंबर है, इसमें n is equal to 132 है, मतलब 2n is equal to 264 and n is equal to 24 in Haplopappus and Poa consecutively. Most of the angiosperm has chromosome number ranging between n is equal to 7 to n is equal to 12. मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना है? 7 से 12 तक.
about 35 to 40% of the flowering plants are polyploids. Anybody knows what is polyploidy? Hello? Hello? More than 2 sets of chromosomes. So you are better known in case of higher organisms, they show presence of 2 complete sets. Out of these complete sets, 1 complete set is from maternal parent or mother, and another chromosome set is from paternal parent or father. And combination of both of these is nothing but your genome. So in case of majority of the angiosperm, n is equal to 7 to n is equal to 12, majority of angiosperm shows. And 35 to 40% of the flowering plants are polyploids, means they show presence of triploidy, tetraploidy, or pentaploidy, etc. Triploidy means 3n, 4n, 5n, etc. It is usually seen that closely related plants like different species of genus show chromosome number which reveal an arithmetic relationship with one another, often in multiple of a base number of characteristic feature of a genes. मतलब एक ही अलग अलग जनरा है, एक ही स्पेसीज है, एक ही अलग अलग जनरा के या अलग अलग जनरा है, तो लेकिन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. So it is usually seen that closely related plants like different species of genus shows chromosome number which reveals an arithmetic relationship with another, often multiple of base number of characteristic features. For example, different species of piper, पाइपर का मतलब है ब्लैक पाइपर या आप जिसको बोलते हैं काली मिरी, shows chromosome number in multiples of 26. For example, diploid में 52, in piper nigrum diploid 78, in piper beetle. Piper beetle मतलब आप जो पान खाते हैं, that is piper beetle. खाऊचं पान म्हणता तुम्ही, 2n is equal to 78, that is again in a multiple of 26. Then 2n is equal to 104 in wild species of piper. हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, that is of piper. So in case of piper, multiple of 26 में क्रोमोसोम है. Piper nigrum diploid 52, piper beetle again diploid but 78, but it is not diploid, it is supposed to be polyploid. Then 2n is equal to 104, again it is a polyploid, tetraploid है. So it is according to Matthew in 1958. Next example देखते. Morus nigra has highest chromosome number, 2n is equal to 308. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आप में से किसी को मोरस अल्बा मालूम है? नहीं है. तो तुतू का प्लांट मालूम है? तुतू, मलबेरी क्या होता है? हाँ, मलबेरी ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे और खट्टे और मीठे लगते हैं, शायद आपको पता होगा. दैट इज मलबेरी और मोरस. और दूसरी बात, मलबेरी के लीफ पर ग्रो करते हैं सिल्क वर्म्स को, दैट इज आल्सो नोन टू यू, है ना? Yes, sir. हाँ. So in case of Morus alba, diploid chromosome number is 308. Now you just observe, हमने पहले बोला था कि haploid chromosome number 7 से 12 के बीच में है, मतलब diploid 14 से 24 तक, और there is one species Morus nigra in case of which diploid chromosome number is 308. In Morus cathyana, there are forms with diploid 56, 84, 112, etc. अब उसके बाद और एक प्लांट बताता हूँ, सोलानम नाइग्रम. क्या आप में से किसी ने ये प्लांट देखा है? काली कांगुनी, या उसको बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड. किसी ने देखा है ये प्लांट? नो सर. ओके, मैं आज व्हाट्सएप पर आपके इसकी इमेज शेयर करूंगा. सोलानम नाइग्रम, या उसको बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड, या मराठी में उसको बोलते हैं काली कांगुनी. इट इज गुड एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज कॉम्प्लेक्स. कंपेयरिंग डिप्लॉयड n is equal to 12, tetraploid n is equal to 24, and hexaploid n is equal to 36. अब थोड़ा सा इसमें देखो, हेक्साप्लॉइड है और क्रोमोसोम नंबर कितना है? 36. तो मतलब है बेसिक सेट पर कितने हैं? 6 क्रोमोसोम्स ओनली. डिप्लॉइड में 12, टेट्राप्लॉइड में 24 और हेक्साप्लॉइड है उसमें 36. एंड इवन इन केस ऑफ सोलानम नाइग्रम,
It is some of the species are dodecaploid. Dodecaploid means basic chromosome number अगर cell में देखा तो it is 12n और it shows presence of 12 sets of chromosome. बेसिक्स में 6 इसलिए डोडिकैप्लॉइड में हो गए कितने 12 into 6 that is equal to 72. ओके नेक्स्ट क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी. देखो हम अपनी भी मॉर्फोलॉजी देखते हैं. हम बोलते हैं XYZ पर्सन ऊंचा है, पतला है, जाड़ा है, व्हाटएवर इट इज. नहीं तो आप बोलते हैं उसका आवाज ऐसा है वैसा है, आप डिस्क्राइब करते हो. वैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, I think all of you have studied it. Study of chromosome morphology is informative to taxonomists assessing affinities and methods of origin of separate species. शायद आपको पता होगा, आप हमेशा एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब देखते हैं तो आपने देखा होगा किसी के हाथ के फिंगर्स जो है वो शार्ट है, आप बोलते हैं उसके फिंगर की साइज छोटी है. नहीं तो आपने देखा होगा उसका बेसल फुट जो है उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोगों की कम होती है, आप बोलते हैं इसकी फुट की साइज ज्यादा है एंड सो ऑन, यानी लंबा है. द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ बैबॉक इन क्रिपिस, क्रिपिस इज अ जीनस, यहाँ मुझे इटैलिक्स करना था, शो हाउ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कपल्ड विद क्रोमोसोम नंबर is of considerable importance in the genetic and taxonomic phase of study. In genera like Cripis and Plantago, large size and small number of chromosomes has been of great value in this type of study. देखो Plantago और Cripis ये दो जनरा में कैसा है, लार्ज साइज एंड स्मॉल नंबर, मतलब क्रोमोसोम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन दे आर फ्यू इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 15 क्रोमोसोम है लेकिन फ्यू इन नंबर है. मैं एक सिंपल आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ सो दैट द आइडिया इज क्लियर. आप सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर. Yes, sir. चलो सपोज मैं बैंक में गया और मैंने बैंक से 1000 रुपए निकाले और 1000 रुपए मुझे बैंक ने दिए 2,000 रुपए के नोट के डिनोमिनेशंस. तो इज इट सिंपल टू कैरी इट और नॉट? 2,000 के 5 नोट मुझे मिले, इज इट सिंपल टू कैरी इट और नॉट? Yes, sir. ओके. इन रिलेशन टू अनदर एग्जांपल, सपोज मैं बैंक में गया, बैंक ने मुझे 1000 रुपए के बदले में 1000 रुपए के कॉइन दिए. इज इट इजी टू कैरी दिस? नहीं सर. No, sir. ओके चलो 1000 के कॉइन की तो बात छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझ लो बैंक ने मुझे 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्डी दे दी. इज इट इजी टू कैरी? No, sir. नो सर. No. That means denomination of note also plays important role. So just like that, in case of Cripis and Plantago, chromosomes are large in size, but they are small in number, and such a type of information is very useful for further studies. अब size में देखो, it has already been discovered that evolutionary development involves in addition to alternation in chromosome number, their size, changes in structure, etc. So that analysis of these cytological characters may also shed important light on species relationship. Recent observations on the Minispermaceae, family Minispermaceae, has shown that this aspect of cytology is sometimes valuable in taxonomic discussions. शायद आपने देखा होगा, आपको या आपके भाई को या आपकी बहन को अगर कैरेक्टर देखे तो एक जैसे रहते हैं. कोई भी हमेशा आपके विलेज में आपके आजू बाजू में है तो आपको सिर्फ देखने के बाद पूछता है क्या आप XYZ की फैमिली से हो, क्या आप XYZ के भाई या बहन हो, क्योंकि सामने वाला बोलता है कि आप उसके जैसा दिखते हो, नहीं तो आपका साउंड उसके जैसा है, नहीं तो आपका एटीट्यूड, चलने का ढंग उसके जैसा है, एक्सेट्रा. आ रही बात ध्यान में? Yes, sir. Okay, so you just observe here are many more different chromosomes. अगर आपने यहाँ क्रोमोसोम देखे तो नॉर्मली देखो ये पहले अगर 2 छोड़े तो बाकी ये सभी करीबन सेम डिस्टेंस के है. नीचे भी पहले 4 देखे तो करीबन सेम, 4, 5, 6 देखे तो करीबन सेम डिस्टेंस के है. So such a type of different morphology of the chromosome or size of chromosome also plays important role. So in this family, that is Minispermaceae, genera Sitaphania, Cyclia, and Cisampelos are grouped under the Cisampelidae.
हम इतने डिटेल में तो नहीं जा सकते आप, लेकिन कम से कम इतना देखो कि मिनिस परमिएसी में डिफरेंट जनरा है. While Cyclia and Cisamphilos shows reduction in the perianth part of female flower, that is Stepania shows no such a reduction. मतलब क्रोमोसोम नंबर और इससे रिलेशन कैसा है देखो. Cytologically, Cyclia and Cisamphilos are seen to be based on 12, while Stepania shows n is equal to 13. It is seen that number n is equal to 13 is characteristic feature of tribe Coaculea, which further shows chromosome of small size. मतलब क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम साइज का डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजी से रिलेशनशिप, एटलीस्ट इन केस ऑफ मिनिस्पर्मेसिया, दैट वी हैव स्टडी. इन स्टिपेनिया आल्सो इट शोज क्रोमोसोम ऑफ स्मॉल साइज. Stepania shows chromosomes of small size, while Cyclia and Cisamphilos has much larger chromosome. मतलब एक ही फैमिली के अलग अलग जनरा में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहे. लार्ज क्रोमोसोम, लो क्रोमोसोम नंबर, सिमेट्रिकल कैरियोटाइप रिप्रेजेंट प्रिमिटिव स्टेटस, while small chromosome, high number and extreme asymmetrical indicates advancements. थोड़ा सा यहाँ देखो, हाई नंबर एंड एक्सट्रीम असिमेट्री एडवांसमेंट है, मतलब लो नंबर एंड असिमेट्री इंडिकेट्स प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर. आपको ध्यान में आ रहा है? हेलो? यस सर. हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड उसकी असिमेट्री का मतलब है कुछ बहुत ज्यादा हाइट के है, कुछ बहुत कम हाइट के, दैट इज असिमेट्री. So application of these principles has yielded interesting result in the families like Pandanaceae, Alismataceae, Hydrocharytaceae, Liliaceae, Amarlidaceae and Diospyrosae. अब Diospyrosae में मैं एग्जांपल बताता हूँ. आपने करांदे या मटाड़ू देखे होंगे. मटाड़ू खाए हैं या करांदे? पोटैटो जैसे, पोटैटो जैसे ब्लैक कलर के होते हैं एंड उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको मटाड़ू या करांदे बोलते हैं. चलो, सो इन दिस फैमिलीज इट इज इंपॉर्टेंट. विद इन द जिरानियल्स, क्रोमोसोम स्टडी डज नॉट जस्टिफाई एक्सक्लूजन ऑफ द बैट्सामिनिएसी एज प्रपोज्ड बाय एंगलर. मतलब सब जगह एक ही कैरेक्टर होता है ऐसा नहीं है. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपको सभी ध्यान में आ जाएगा. चलो, सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछा और अपूर्वा को पूछा, अपूर्वा को जवाब नहीं आया. अपूर्वा सुन रही? यस सर. हाँ, मैं अपूर्वा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सपोज अपूर्वा को मैंने क्वेश्चन पूछा और अपूर्वा ने जवाब नहीं दिया. क्या इसका मतलब ऐसा है कि अपूर्वा को कुछ भी नहीं समझता? नहीं. अच्छा, क्या इसका मतलब ऐसा है कि एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसको कुछ नहीं समझता, तो आप नहीं बोले? चलो, समझ लो कि मैंने अपूर्वा को 4-5 क्वेश्चन पूछे और अपूर्वा ने सभी क्वेश्चन के जवाब दिए. क्या इसका मतलब ऐसा है कि अपूर्वा सबसे होशियार है, अपूर्वा सबसे टैलेंटेड है? नो सर, बिल्कुल नहीं है. सो जस्ट लाइक दिस, मार्क्स ऑफ योर एग्जाम, दीज आर जस्ट इंडिकेटिव. ये इंडिकेटिव है. वैसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर हो या कोई कैरेक्टर हो, ये कैरेक्टर पर सिर्फ उस इंडिविजुअल को सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते, आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते. बात ध्यान में आ रही है? और इसीलिए मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट, इन स्पाइट ऑफ रिलाइंग ऑन द मॉर्फोलॉजी, दे शुड रिलाई ऑन रेस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड देन ही और शी शुड से रिगार्डिंग इट्स फाइलोजेनी. देखो, हमने बहुत बार देखा होगा, कोई आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर है, लेकिन अगर आपने उसको बोला कि थोड़ा गाना गा के सुनाओ, वो बोलता है नहीं मुझे गाना नहीं आता. आपने उसको बोला चलो खेलते हैं, वो बोलता है नहीं मुझे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और आपके क्लास में कोई मिडिल स्टूडेंट है और वो चलो चाय पीने को हमेशा आपके साथ साथ है. समझ लो आपने पूछा कि चलो ग्राउंड पर जाके गैदरिंग है, हम खेलते, वो आता है. किसी भी टॉपिक पर आपने बात की तो वो बोलता है. तो इन दोनों में से आपको किसकी फ्रेंडशिप अच्छी लगेगी? जो मिडिल स्टूडेंट है. नहीं सर, पहले वाले की या दूसरे वाला. और आप सपोज टू भी उसको बोलते ही इज वर्सटाइल. ध्यान में आ रहा है? आप उसको बोलेंगे ही इज वर्सटाइल. वर्सटाइल को मराठी में बोलते हैं चतुरस्त्र, यानी ही नोज एवरीथिंग. और सपोज टू बी यस, जैसे क्रिकेट में आप बोलते हैं अष्टपैलू, और जस्ट लाइक ही इज ऑलराउंडर.
So just like that, in spite of relying on the morphology, you should give importance to rest of characteristic features on which individual should be classified. उसके बाद next देखते हैं, significance of psychology. Meiotic behavior sometimes shows the heterozygosity of inversion. Psychological data is significant than other taxonomic evidences. Significance of cytotaxonomy. Role of cytotaxonomy is very important in taxonomic studies. चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल और बताता हूं आपको. शायद आपको कुछ पता है, हैंडराइटिंग और जनरल थिंकिंग इसमें कुछ रिलेशन है. यस सर. यस, हमेशा ऐसा कहा जाता कि अरे आप तो इतने अच्छे हो, आप सभी जानते हैं, और आपका हैंडराइटिंग इतना खराब क्यों है? बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं. मतलब हमारा कंसिडरेशन कैसा होता है कि those who is supposed to be intelligent, at least he should have good handwriting. बेस्ट नहीं होगा लेकिन गुड या नॉर्मल हैंडराइटिंग होना चाहिए. लेकिन आपने अपने आजू बाजू में बहुत लोग देखे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, अच्छा खासा सभी चीजों के बारे में जानकारी रखते, लेकिन उनका हैंडराइटिंग बकवास रहता है. तो क्या ऐसे हालत में हम हैंडराइटिंग को सिर्फ कैरेक्टर करके कंसीडर कर सकते हैं? नो सर. नहीं. Okay. So the role of cytotaxonomy is very important in taxonomic studies. Cytotaxonomy is more significant for physiological taxonomy because of this process is dealing with comparative study of chromosome, and with this method minute variation among the individual can be detected. Next देखते हैं. DNA is present in the every chromosome, and the variation in each DNA are responsible for variation among the individuals, species, genus, and everything. When the differences in physiological variations are too less among the individuals of same species and other high taxa. अब ये साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में दिया है, इतने डिटेल्स आप सिर्फ पढ़ो, आपके ध्यान में आ जाएगा. जैसे हम क्रोमोसोम को इंपॉर्टेंस देते थे, वैसे डीएनए को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है. आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आजकल बहुत ज्यादा बारकोडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू प्लांट फाइटोकेमिस्ट्री. Phytochemistry is the study of phytochemicals or chemicals available in the plant which are chemical derived from the plants. Compounds found in plant are of many more kinds, but most of them are of four major biochemical classes, that is alkaloids, glucosides, polyphenols, and terpenes. Phytochemistry can be considered a subfield of botany or chemistry. What is the purpose of phytochemical screening? हम क्यों phytochemical screening करते हैं? अब देखो, phytochemical screening इसलिए करते हैं कि to know regarding the chemical composition of that plant. It refers to extraction, screening, and identification of medicinally important or active substances found in the plant, or to find out the active substances from the plant. Some of the bioactive substances, bioactive means biologically active substances that can be derived from plant are, और कौन कौन से हैं? Flavonoids, alkaloids, carotenoids, tannins, antioxidants, phenolic compounds, etc. You get it? Yes, Hello? sir. Yes sir. Okay. The occurrence and distribution of various types of chemical substances present in the plants provide to be taxonomic significance. However, it should be noted that all kind of chemical substances present in plant do not reveal information useful to the taxonomist. मतलब जो सभी chemical substances है, वो सभी chemical substances taxonomist के लिए जरूरी होने के chances नहीं है. मैं आपको बताता हूँ. Suppose अपूर्वा इज सपोज टू बी बेस्ट, उसको हर चीज में सभी चीजें मालूम है. अपूर्वा सपोज रंगोली अच्छी बनाती है, अपूर्वा अच्छी गाती है, अपूर्वा अच्छा डांस करती है, अपूर्वा का हैंडराइटिंग अच्छा है. क्या एक टीचर के हिसाब से मेरे लिए ये सभी चीजें ज्यादा जरूरी है? हेलो? नो सर. नहीं, बिल्कुल नहीं है. मेरे लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी होगी? अपूर्वा का एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो. बीइंग ए स्टूडेंट, अपूर्वा बिहेव्स very in a manners as well as he is in a supposed to be maintaining the decorum of the class. That is important for me.
मैं हमेशा बोलूंगा कि जिसको 99% मार्क्स मिलते हैं, इस ऐसे लड़के से जो क्लासरूम में सब चीजें अच्छी तरीके से करता है, प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से करता है, अटेंडेंस दिखाता है, अपने टोन में बराबर अपने टीचर से बात करता है। नो डाउट जब जरूरत है तो आप ऊंची आवाज करने के बिल्कुल लायक है, बिल्कुल काबिल है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो कम से कम मिनिमम डेकोरम भी मेंटेन करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ अ स्टूडेंट माइट बी डिफरेंट। आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे बीइंग अ टैक्सोनॉमिस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक टीचर। Phytochemical characters of taxonomic significance has been classified into 3 types. हम कौन से 3 है 4 है देखते, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिसलिनियस एंड माइक्रो। प्राइमरी में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, दैट इज न्यूक्लियस के कंटेंट्स और न्यूक्लियस से एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सेकेंडरी कंटेंट्स, सेकेंडरी में हम कौन कौन से लेते हैं देखो, फिनोलिक कंपाउंड्स सच एज कैफीन, benzoic and nicotinic acids, phenolic compounds like flavonoids, terpenoids, coumarin, alkaloids, etc. Miscellaneous substances, जो छोटे छोटे substances है जो जरूरी है। वैसे मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। क्या धोपा की सब्जी करते हैं आपके यहाँ? हेलो, यस सर। Yes, sir. जब सब्जी बनाते हैं तब उसमें क्या डालते हैं? टेमरिंड या चिंच, इज इट राइट? Yes, sir. यस Yes, sir. क्यों डालते हैं? कलर आने के लिए। नहीं। नहीं। हाँ, और कोई बता दो। यस, हेलो। अच्छा, बिना डाल के कभी बनाई है घर में लोगों ने या खाई है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं। उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन एक्चुअली वो कुछ तो भी ऐसे बोलते हैं कि वो गले में फिर वो कुछ तो भी खुजली कुछ तो बोलने का मतलब मैं बताता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स व्हिच आर नोन एज सिस्टोलिन, दैट इज कैल्शियम स्टेराइड्स crystals are available and these crystals, गले में आप जो बोलते हैं कि खुजली होती है या आप खा नहीं सकते, और these crystals are dissolved in tamarind। आ रहा है ध्यान में? And Yes. these substances are miscellaneous substances or cellular inclusions. So एरिसिडी का कोई भी मेंबर है तो उसमें सिस्टोलिथ, रैफाइड्स, स्टेराफाइड्स ऐसे क्रिस्टल्स रहते हैं। So these characteristic features are very important। ठीक है, तो शायद आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हुआ है ना? हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो शायद आई शुड स्टॉप हियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मुझे और एक थोड़ा सा बात बता दो, आज की मैक्सिमम प्रेजेंटी कितनी है? 53 थोड़ा क्यों आज बहुत ज्यादा लोग एब्सेंट क्यों है? क्या पता? We don't know. नहीं, वी डोंट नो ऐसा मत करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दो, सहेलियों को बता दो। नहीं, हम तो आ गए अभी। हम पूरे ग्रुप आए सर। सर हमारे फ्रेंड्स हैं पूरे। ठीक है, फिर भी आप लोगों के जो भी क्लोज फ्रेंड है जो आज एब्सेंट है उनको बता दो, नहीं तो शायद मुझे इन लोगों के पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये लोगों जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक वो लोग ज्वाइन नहीं होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी जाने दो, क्या ज्वाइन होना है, ऑनलाइन ही तो है, इसलिए फिर वो ज्वाइन ही नहीं करते। ऐसा नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखो कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग माय क्लासेस। आपने देखा होगा मुझे कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं होता और मैं फुल टाइम यूटिलाइज करता हूँ। मैं आपको सभी मटेरियल आपको शेयर करता हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो यूट्यूब के लिंक्स हो, चाहे वो और कुछ हो। क्यों मैंने नहीं किया तो आप कोई मेरी कंप्लेंट करने वाले नहीं हो। सो आई आल्सो एक्सपेक्ट सिमिलर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फ्रॉम यू आल्सो। सो प्लीज कन्वे माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आ रहा है ध्यान में? यस सर। और वन मोर थिंग, अगर मुझे मेरा लेक्चर होने वाला नहीं है ऐसे हालात में, अगर अनअवॉइडेबल रीजन से मेरा लेक्चर होने वाला नहीं है तो मैं आपको 1 घंटा कम से कम पहले, नहीं तो 1 दिन पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। और मटेरियल इज ऑलरेडी शेयर ऑन द क्लासरूम, सो टेक इट सीरियसली दोज हु आर एब्सेंट। एंड आप लोगों के वो फ्रेंड है तो उनको सिर्फ बता देना कि आपको ये करना है करके। और एक मैं थोड़ा सा आधे मिनट का एक सेकंड, मैं आधे मिनट का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट।
आपको अभी क्या दिख रहा है? हेलो, यस सर। हाँ अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव दिख रहा है। चलो मैं आपको एक आधा मिनट आपका सिर्फ लेता हूँ। अभी क्या दिख रहा है? वीडियो ऑन हो रहा है। पीपीटी दिख रही। चलो अगर समझ लो मैंने इस पीपीटी को रन किया तो आपको साउंड आता है क्या, थोड़ा बताओ। नो सर। एक सेकंड, मैं थोड़ा आवाज बढ़ा देता। मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन का ऑडियो बंद है, वो स्क्रीन का ऑडियो ऑन हो जाएगा तो वीडियो का भी आवाज आएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा 1 मिनट। हाँ क्या बोले अभी बताओ। हेलो, सर आपका स्क्रीन का ऑडियो म्यूट है। म्यूट है। ऑडियो म्यूट है मेरा? एक हाँ, सेकंड, स्क्रीन का। स्क्रीन का ऑडियो म्यूट। एक सेकंड ना, इसका ऑडियो अभी मैंने म्यूट किया, आपसे बात कर रहा हूँ करके। एक सेकंड, हाँ अभी देखो। सर वो नहीं है। शुरू नहीं है? नो सर सर, आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन आवाज नहीं है। ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट, हेलो हाँ, हेलो, सर एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो हेलो, यस सर। तो शैल आई लीव नाउ? थैंक यू Yes, वेरी मच। आप सभी लोगों को बता दो, यस और सर। अगर कुछ कल के लेक्चर के बारे में कुछ नोटिस है तो मैं आपको कल बता दूंगा। yes sir. ओके हो सर। सकता है कल का लेक्चर एक आध बार ना होने के चांसेस है, लेकिन मैं कल आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके सर। Okay sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you sir.